Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher. And today we are going to do lesson number 2.5 Had the Happy Prince, and today we are going to finish the lesson. So come, let's get started. In the last class we have seen when the swallow flew back to the happy prince, it said that it is very cold but I feel quite warm. I mean, the swallow was feeling very warm because it had done a very good thing. That is because you have done a good thing, said the prince. The little swallow fell asleep. Now the happy prince told the swallow that because you have done a good thing, तुमने एक अच्छा काम किया है, and that's why you are feeling warm. And then the little swallow fell asleep. अब वो swallow थक गया था तो वो सो गया. When day came, the swallow flew down to the river for a bath. A clever man saw him. That is very unusual, he said. That kind of bird here in winter? I must write that down. I will go to Egypt tonight, thought the swallow. When the moon came up, he flew back to the happy prince. Can I do anything for you in Egypt? He said. Little bird, said the prince, please will you stay with me for one more night? ओके. तो जब दिन निकला तो स्वैलो जो था फिर से रिवर के पास गया नहाने के लिए. फिर एक क्लेवर मैन आदमी ने उसको देखा और कहा कि अरे, इतना अनयूजुअल विंटर में इस तरीके का बर्ड यहाँ पे कभी दिखाई नहीं देता. तो चलो, ये मैं अपने डायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ. फिर वो स्वैलो सोचता है कि चलो आज रात तो मैं इजिप्ट में चला जाऊँगा, वहाँ पे तो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं. फिर जब शाम को चांद निकला तो फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास गया. एंड वो पूछता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ इजिप्ट में. तो ये हैप्पी प्रिंस बोलता है, लिटिल बर्ड प्लीज़ विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट. क्या तुम मेरे लिए एक और रात मेरे साथ रुकोगे? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, आंसर्ड द बर्ड. मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. फार अवे अक्रॉस द सिटी, सेड द प्रिंस, आई कैन सी अ यंग राइटर इन द लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस. He is sitting at a table that is covered with papers. At his side there are some dead flowers. He is trying to finish a story, but he is very cold and he cannot write. There is no fire in the room and he is weak and hungry. I will wait with you for one more night, said the swallow kindly. What shall I take to him? Take him one of my eyes, said the prince. They are made of beautiful blue stones. The young man can sell it and buy wood and food. He can finish his story. अब जो प्रिंस है वो एक और स्टोरी सुनाता है उसको कि फार अवे अक्रॉस द सिटी, इस शहर के उस पार बहुत दूर एक यंग राइटर है जो एक छोटे से कमरे में बैठा है, एक घर के टॉप के छत के ऊपर. और वो एक टेबल के ऊपर बैठा है जिसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं और उसके बाजू में थोड़े से ऐसे सूखे हुए फूल रखे हुए हैं. वो एक स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे बहुत ठंडी लग रही है और वो लिख नहीं पा रहा है. उसके कमरे में थोड़ी भी आग नहीं जल रही है और वो बहुत ही वीक हो गया है, बहुत ही वो भूखा है. तो स्वैलो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रात और वेट करूँगा. तो क्या लेकर जाऊँ उसके पास? टेक हिम वन ऑफ माई आई, सेड द प्रिंस. वो प्रिंस बोलता है कि मेरी दोनों आँखों में से एक आँख जो ब्लू स्टोन से बना हुआ है, ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन से, वो लेकर जाओ उसके पास. फिर वो यंग मैन उसको बेचकर अपने लिए लकड़ी और फूड खरीद सकेगा और फिर वो अपनी स्टोरी जो है वो कंप्लीट कर सकेगा. टेक आउट योर आई डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो. आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू क्राई. मैं आपकी आँख निकालूं डियर प्रिंस, मैं ये नहीं कर सकता. और वो स्वैलो जो है वो रोने लगा. डू इट, सेड द प्रिंस. नहीं, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा. So the swallow took out the princess' eye and flew away to the young man's room. It was easy to get in because there was a hole in the roof. The young man was sitting with his head in his hand, so he did not hear the bird's wings. When he looked up, a beautiful blue jewel was lying on the dead flowers. Someone likes my stories, he cried happily. This is a gift from someone who has read my books. Now I can finish writing this story. ओके. तो फिर वो स्वैलो प्रिंस की एक आँख निकाल लेता है और वो यंग मैन का जहाँ पर रहता था वहाँ पे वो उड़ते हुए जाता है. एंड वो उसके घर के रूफ में एक होल था तो वहाँ पे उसके घर के अंदर जाना बहुत आसान था. यंग मैन जो था वो अपने सर के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ था और इसलिए उसको बर्ड्स के विंग्स के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी. जब उसने ऊपर देखा तो एक ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल जो था वो डेड फ्लावर्स के ऊपर रखा हुआ था.
तो समवन लाइक्स माई स्टोरीज ही क्राइड हैप्पीली, उसको लगता है कि अरे शायद किसी को मेरी कहानियाँ पसंद है, तो शायद जिसने मेरी किताबें पढ़ी हैं उसने ये गिफ्ट मेरे लिए रख छोड़ा है, अब मैं अपनी अगली स्टोरी जो है वो लिखना ख़त्म कर सकता हूँ। ऑन द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the river. He watched the seamen working on the ships. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to him. When the moon came up, he flew back to the happy prince. I have come to say goodbye to you, he said. Little bird, said the prince, please will you stay with me for one more night? It is winter, answered the swallow. The snow will come soon. In Egypt, the sun is warm and the trees are green. Dear prince, I must leave you, but I will never forget you. ओके तो अगले दिन फिर से वो स्वैलो रिवर के पास गया और फिर वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे समुंदर में शिप के ऊपर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको सी मैन बोला जाता है। तो वो उसने देखा उनको और फिर वो चिल्लाता है आई एम गोइंग टू इजिप्ट, वो स्वैलो, लेकिन नो वन लिसन टू हिम, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। फिर शाम को जब चांद निकलता है तो फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है। फिर आई हैव कम टू से गुड बाय टू यू, ही सेड, वो बोलता है मैं आपको गुड बाय बोलने आया हूँ। तो प्रिंस बोलता है लिटिल बर्ड क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए और रहोगी? तो स्वैलो बोलता है देखो ये विंटर है, ठंडियाँ हैं और अभी स्नोफॉल शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, और इजिप्ट में सन जो है वो बहुत ही वार्म है और अभी भी वहाँ पे हरियाली है, ट्रीज आर ग्रीन। डियर प्रिंस, मुझे जाने दो एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मुझे जाने दो, मैं इतनी ठंडी में नहीं रह सकता। अ लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन द स्क्वायर बिलो, शी इज सेलिंग एग्स, हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ब्रोकन, शी हैज़ नो मनी टू टेक होम, हर फादर विल हिट हर, टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, I will stay with you for one more night, said the swallow, but I cannot take out your other eye. You will not be able to see. Do it, said the prince. So the swallow took out the princess' other eye and flew down with it. He flew to the girl and put the jewel in her hand. This is a beautiful piece of glass, cried the little girl. She ran home laughing. अब हैप्पी प्रिंस एक और स्टोरी सुनाता है। वो बोलता है कि देखो ये जो नीचे चौक है वहाँ पर एक छोटी सी लड़की खड़ी है, वो अंडे बेच रही है, लेकिन उसके अंडे जो है वो ज़मीन पे गिर के सारे टूट गए हैं। अब उसके पास पैसे नहीं है कि वो घर वापस ले जा सके, उसके पापा ये सुनेंगे तो वो उसे मारेंगे, तो मेरी दूसरी आँख निकालो और उस लड़की को दे दो। मैं यहाँ पर तो स्वैलो सेज कि मैं आपके साथ यहाँ पे बस एक और रात रुकूंगा, लेकिन मैं आपकी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, फिर तो आप देख ही नहीं पाएंगे। प्रिंस बोलता है डू इट, आपको ये करना ही पड़ेगा। सो द स्वैलो वो प्रिंस की दूसरी आँख निकाल लेता है और उड़ते हुए नीचे जाता है। वो उस लड़की के पास जाकर वो ज्वेल उसके हाथ में दे देता है। तो फिर वो लड़की बोलती है अरे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ग्लास, एक्चुअली वो डायमंड होता है, लेकिन वो छोटी लड़की बोलती है देखो कितना सुंदर ग्लास का टुकड़ा है। सो शी रैन होम लाफिंग, और वो खुशी से घर चली जाती है। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, यू कैनॉट सी नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू। नो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट। I will stay with you, repeated the swallow, and he slept at the prince's feet. The next day he stayed with the prince. He told the prince stories about the strange lands that he knew. Dear little bird, said the prince, you are telling me about strange and wonderful things, but the suffering of men and women is stranger than anything. Fly over my city, little bird, tell me what you see there. तब वो स्वैलो जो है वो प्रिंस के पास उड़ के वापस चला जाता है। अब वो बोलता है कि आपको तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपके तो मैंने दोनों आंखें निकाल ली हैं, तो मैं आपके साथ रहूँगा। अब प्रिंस बोलता है कि नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना होगा। तो स्वैलो बोलता है नहीं, मैं आप ही के साथ रहूँगा, और फिर वो प्रिंस के पैरों के पास सो जाता है। तो नेक्स्ट डे फिर वो प्रिंस के साथ रहता है और वो प्रिंस को बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है, स्ट्रेंज लैंड्स जो उसको पता थी, स्ट्रेंज लैंड्स की स्टोरी। अब वो प्रिंस बोलता है डियर लिटिल बर्ड, तुम मुझे स्ट्रेंज और वंडरफुल चीज़ों के बारे में बता रहे हो, लेकिन जो मैन और वुमेन मतलब इंसानों का जो सफ़रिंग है, जो दुख है, जो वेदना है, वो सारी चीज़ों से स्ट्रेंजर है। और इसलिए मेरे सिटी के ऊपर तुम एक बार उड़ते हुए जाओ और तुम्हें वहाँ पे क्या दिखाई देता है वो मुझे तुम बताओ। सो ये देखो स्वैलो जो है इट इज़ फ्लाइंग। So the swallow flew over the great city. He saw the poor people sitting at the gate.
He flew into the dark streets and saw the white faces of hungry children with sad eyes. Under a bridge, two little boys were lying close together to keep warm. "We are so hungry," they said. "You cannot lie there," shouted a guard. Then the swallow flew back and told the prince, "I am covered with fine gold," said the prince. "Take it off piece by piece and give it to my poor people." The swallow pulled off the gold until the happy prince looked grey and ugly. The swallow took the gold to the poor and the children's faces became brighter. अब वो स्वैलो उड़ते हुए पूरे शहर के ऊपर उड़ते हुए जाता है और फिर वो गरीब लोगों को गेट के पास बैठा हुआ देखता है। वो डार्क स्ट्रीट्स में उड़ते हुए जाता है तो वहाँ पे जो भूखे बच्चे हैं उनके चेहरों को देखता है, उनकी आँखों में जो दुख है वो देखता है। फिर ब्रिज के नीचे उसको दिखते हैं दो छोटे से लड़के दिखते हैं जो जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे पास पास बैठे होते हैं। देन फिर वो बोलते हैं कि अरे वी आर सो हंग्री, हमको कितनी भूख लगी है। फिर एक गार्ड जो है उनके ऊपर चिल्लाता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते, उठो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो ये सारी बातें स्वैलो देखता है और उड़ के वापस जाता है प्रिंस के पास और प्रिंस को बताता है। अब प्रिंस बोलता है कि देखो पूरे मेरे बॉडी के ऊपर फाइन गोल्ड है, तो तुम ये पीस बाय पीस सारा गोल्ड निकाल लो और मेरे पुअर लोगों को दे दो। तो स्वैलो क्या करता है, उनके बॉडी के ऊपर से पूरा गोल्ड निकाल लेता है एंड ही गिव्स इट टू द पुअर पीपल। तो पुअर लोगों को देने के बाद बच्चों के जो चेहरे हैं वो बहुत ब्राइट हो जाते हैं एंड हैप्पी प्रिंस जो है बहुत ही ग्रे और अगली दिखने लगता है। "Then we have bread now," they cried. Then the snow came. Ice followed the snow and hung down from the roofs of the houses. Everyone wore thick coats. The little swallow became colder. He did not leave the prince because he loved him very much. But he was dying. "Goodbye, dear prince," he said. "I am glad that you are going to Egypt," said the prince. "You have stayed too long." "I am not going to Egypt," said the swallow. "I am going to the house of God." It fell down dead at his feet. Then there was a strange sound inside the statue. Crack! The metal heart broke into two pieces. अब बच्चे जो है, जो हंग्री लोग, पुअर लोग जो है, वो बोलने लगे कि अरे चलो अपने पास अभी ब्रेड तो है, खाने के लिए कुछ है। अब कुछ दिनों के बाद फिर स्नोफॉल होने लगा, फिर उसके बाद आइस आने लगी और फिर सब पूरे घर वहाँ पे जितने भी घर थे वहाँ पे सबके घर के रूफ के ऊपर बर्फ़ जम गई। फिर हर एक जन जो है वो मोटे मोटे वुलन कोट्स पहनने लगा। अब लिटिल स्वैलो को बहुत ठंडी लगने लगी। अब वो प्रिंस के पास से कहीं नहीं जाता था क्योंकि वो प्रिंस को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो मर रहा था। "गुड बाय डियर प्रिंस," अब वो बोलता है। तो फिर वो प्रिंस बोलता है कि अरे मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम इजिप्ट जा रहे हो, तुम मेरे साथ बहुत दिन रुके। तो स्वैलो बोलता है, नहीं प्रिंस, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ। और स्वैलो जो है वो मर जाता है लिटिल प्रिंस के पैर के पास। और फिर उसके स्टैचू के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रैक की आवाज़ आती है। उसका जो मेटल का हार्ट है वो टूट के उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। Early next morning, an important man in the city was walking below the two of his friends. He looked up at the statue. "The happy prince does not look very bright," he said. "The red stone has disappeared, his eyes are not there, and he is not golden. He looks like a beggar." "Yes, he does," said the man's friends. "Here is a dead swallow at his feet," said the officer. "You must make an order that birds cannot die here." They pulled down the statue of the happy prince and put it in the fire. A stream of bright metal ran out. अगले दिन सुबह शहर का एक बहुत ही नामचीन इम्पोर्टेंट आदमी वो जा रहा था, चलते हुए जा रहा था उसके दो दोस्तों के साथ। उसने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की तरफ देखा तो वो बोलने लगा कि अरे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू ऐसा क्यों दिख रहा है, ब्राइट क्यों नहीं दिख रहा। उसके बेल्ट में रेड स्टोन भी नहीं है, आँखों में दो ब्लू स्टोन्स भी नहीं हैं, उसके बॉडी के ऊपर का गोल्ड भी नहीं है और बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है। तो एक आदमी बोलता है कि हाँ, उसका जो फ्रेंड बोलता है, हाँ सच्ची में। तो उसके पैरों के पास एक डेड स्वैलो है, मरा हुआ स्वैलो वाला पक्षी है। तो अब हम लोगों को एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि इस तरीके से बर्ड्स को यहाँ पे मरने नहीं देना चाहिए। तो फिर वो लोग हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसको वहाँ से स्क्वायर से उतार लेते हैं और उसको फायर में, भट्टी में डाल देते हैं गलने के लिए।
फिर वो गलने लगता है तो एक ब्राइट मेटल का स्ट्रीम जो है उसमें से निकलता है. एंड "This is strange," said the workman. "This broken piece in the middle of the statue has stayed hard. We must throw it away." So they threw it away with the dead bird. God said to his servants, "Bring me the two best things in the city." They brought him the broken heart and the dead bird. "Yes, you have brought the right things," God said. "This little swallow will sing forever in my garden, and the happy prince will stand in my city of gold." ओके. तो अब वो वर्कमैन जो वो मेटल को गला रहे होते हैं वो बोलते हैं कि अरे कितना स्ट्रेंज है, देखो पूरा स्टैचू गल गया, लेकिन ये जो मिडल में उसका जो ब्रोकन पीस है, वो जो उसका हार्ट था वो गला ही नहीं, इट स्टेड हार्ड. तो फिर वो उसको डेड बर्ड के साथ वो लोग फेंक देते हैं. फिर गॉड एक दिन अपने नौकरों को बोलते हैं कि इस शहर की दो सबसे बेस्ट चीज़ें मुझे ला कर दो. तो फिर वो सर्वेंट्स उनको ब्रोकन हार्ट उस हैप्पी प्रिंस का और डेड बर्ड लेकर ला कर देते हैं. सो गॉड बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो बिल्कुल सही चीज़ लाए हो. ये जो लिटिल स्वैलो है ये हमेशा सारी ज़िंदगी मेरे गार्डन में गाएगा, हेवन के गार्डन में ऑफ कोर्स. और हैप्पी प्रिंस जो है मेरे सिटी ऑफ गोल्ड में हमेशा के लिए खड़ा रहेगा. ओके, वेरी टचिंग लेसन. इट इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. Thank you so much for watching. Enjoy your holidays. Stay home, stay safe. Bye bye. See you. We will meet in the next video. Bye bye.